Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It's the second part of our fourth chapter MS Access, and today we have to discuss about the working of MS Access. Well, today in this video we have to primarily focus on like how you will create a MS Access database, how you will execute the application, and how to enter data, edit records and edit fields. Now let's start. Well, first of all, we will revise our concepts as I have taught you in the previous class that this MS Access is a tool which is generally used to create databases. मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि MS Access एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं. और ये डेटाबेस क्या होता है इन जनरल? डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा वैल्यूज. डेटाबेस क्या होता है भाई? ये एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा वैल्यूज का. और ये जो हम लोग एक DBMS सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज आर MS Access. तो MS Access is a DBMS software which generally help you to create, edit, manipulate, or in easy words you can say that it helps you to work with any database. Fine, so you have to learn these two lines also. Then after that, let's quickly move to this application that is MS Access 2010. I have taught you that we are learning about MS Access 2010. It is one of the versions of MS Access, but in general in market we have so many versions. We have versions from 2007 to 2020. That is the latest one. Fine. But in today's class, our main focus will be on 2010 theoretically, and practically I am using 2016. Fine. I am using MS Access 2016 for the practical purpose, but theoretically we will discuss about MS Access 2010. But let me clear out one thing. In all these versions from Office 2007 to 2010, in all these versions, in all these variants, the working pattern or the method to operate the application is almost similar. तो ज़्यादा कोई भी changes नहीं है यहाँ पे. You just have to follow all the steps one by one. But एक छोटा सा problem है बच्चे कि जो MS Access application है, this MS Access application can only work in computers. Fine, it can only work in कंप्यूटर्स. इसको तुम अपने एंड्रॉयड फ़ोन या एप्पल आईफोन्स में यूज़ नहीं कर सकते हो बच्चे. फाइन. सो इट मीन्स अगर प्रैक्टिकल करना है तो तुम्हारे पास कंप्यूटर होना चाहिए. अगर कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है. मेरी वीडियो को देखो, मैं एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझाऊंगा. 2-3 बार देखना. बस क्या करना है, स्टेप्स को समझना है और याद रखना है. फाइन. Then in the previous class we have discussed about these 4 objects. The first one was table. I have told you that in MS Access generally we store our data in the form of tables, and all these tables we have two things. We have rows and columns. अब यहाँ पर जो rows होती हैं, fine, that is this. These rows are termed as records and columns are termed as fields. Then next we have discussed about this term query. Well, whenever we have to filter our data on the basis of a certain condition or on the basis of a given criteria, then for that we use this concept of queries. Then next is forms. Generally when we have to work records or we have to work on records one by one, then for that case we can use forms. And then at last we have this feature of reports. This report is a concept of MS Excel which is generally used to print out your table. If in case you have a table that you want to print out or that you have to print, for that you can use this report feature. Now let's discuss about that how you will work with this application. But उससे पहले एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि which application I do prefer, that is either Excel or Access. I think कुछ ऐसे क्वेश्चन में से किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई MS Access या MS Excel में से ज़्यादा अच्छा क्या है, मैं क्या यूज़ करता हूँ. तो let me clear out one thing. These are two different applications. ये दोनों की दोनों बिल्कुल अलग अलग applications है, दोनों का बिल्कुल अलग अलग काम करने का तरीका है. MS Excel का काम होता है स्मॉल अमाउंट में डेटा को स्टोर करना. फाइन. प्लस ये जो MS Excel का टेबल होता है, यहाँ पे हम लोग डेटा को लिंक नहीं कर सकते हैं. मतलब सपोज करो मेरे पास 5-6 MS Excel की अलग अलग फाइल्स हैं. आई कैन नॉट लिंक दीज फाइल्स. whereas if in case I am working with this MS Access, तो MS Access can be used to work with large data. Here we can link the files also. And also by using this MS Access, we can create our data in so many formats. We can produce it in so many formats. Like we can use it in websites, we can use it in forms, we can use it in creating report cards and some other things. बट ये जो MS Excel का डेटा होता है ना, इसको हम लोग ज़्यादा फॉर्म्स में यूटिलाइज भी नहीं कर सकते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए एक एप्लीकेशन है. तो दोनों के यूजेस अलग अलग हैं, तो मैं भी इसको यूज़ अलग अलग तरीके से करता हूँ. अगर मैं किसी वेबसाइट के लिए डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक अगर मुझे किसी वेबसाइट के डेटा को स्टोर करना है, तो वेबसाइट के डेटा को स्टोर करने के लिए आई विल यूज़
MS एक्सेस। अगर मुझे किसी एक पूरे स्कूल के डेटा को स्टोर करना है, लाइक पूरा स्कूल की बात कर रहा हूँ, किसी एक क्लास की नहीं, तो भाई पूरे एक क्लास एक स्कूल के लिए वी विल यूज MS एक्सेस। बट इफ इन केस आई एम टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, लाइक मैंने बोला कि क्लास 7A के कंप्यूटर के मार्क्स, इसके लिए हम लोगों को डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम लोग सिंपली एक MS एक्सेल की फाइल का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ क्लास 7 के सारे सेक्शंस के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स, तो वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा टू यूज़ अ डेटाबेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू विल वर्क विद दिस एप्लीकेशन। वेल, ये जो स्टेप्स हैं ये राइटिंग पार्ट के लिए नहीं है, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना नहीं है, फाइन, इसको लिखना नहीं है, बस इसको समझना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू विल वर्क और हाउ यू विल स्टार्ट द MS एक्सेस। वेल, फॉर स्टार्टिंग MS एक्सेस, यहाँ पे कुछ जो मैंने मेथड्स दिए हैं, जो मैंने रूल्स दिए हुए हैं, कि जनरली सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क करते हैं, बट हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, सो वी विल डिस्कस मोर देन वन मेथड ऑल्सो। आवर फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, then second from the list of programs click the Microsoft Office and then click on Microsoft Access. After doing this much, you have to click templates option and from there you have to select blank database. When you will do so, it will open a blank database and it will ask you to enter the name of your database also. Now let's create it by mine. Now what I will do, I am suggesting you the easiest way. Easiest way में करना क्या है भाई, आप लोगों को विंडोज़ की प्लस R को प्रेस करना है एंड देन यू हैव टू टाइप एक्सेस। फाइन, क्या करेंगे हम लोग, हमारे कीबोर्ड में एक विंडोज़ की है जो दिखने में या तो कुछ इस तरह से होती है या तो फिर कुछ इस तरह से होती है, और ये जो की होती है ना, ये जो हमारा स्पेस बार है बड़ा सा, इस स्पेस बार के बगल में यहाँ पर एक ऑल्ट की होती है, इस ऑल्ट की के जस्ट बगल में यहाँ पे विंडोज़ वाली की होती है, तो यू हैव टू प्रेस दिस की। फाइन, और उसके बाद जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती है ना, उसमें जो फर्स्ट रो होती है, फर्स्ट रो में फोर्थ की होती है R वाली की, तुमको इन दोनों कीज़ को एक साथ प्रेस करना है एंड व्हेन यू विल डू सो इट विल ओपन रन प्रॉम्प्ट। ये क्या ओपन कर देगा, तुम्हारे कंप्यूटर में रन कमांड को ओपन कर देगा और तुमको रन में टाइप करना है एक्सेस एंड देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की और यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन। चलो प्रैक्टिकली चेक करते हैं। देखो मैंने क्या करा, मैंने विंडोज़ के साथ R को प्रेस करा, जैसे ही मैंने करा तो मेरे सामने छोटा सा रन प्रॉम्प्ट आ गया। चलो जूम करके देखते हैं उसको एक बार कैसा दिखने में ये। फाइन, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सेस एंड देन आई हैव टू प्रेस एंटर की। हो गया इतना का। वेल, इफ दिस विल नॉट वर्क, अगर ऐसे में वर्क नहीं कर रहा है तो माइट बी यू आर हैविंग अ न्यूअर वर्जन ऑफ MS एक्सेस। उस केस में क्या करो, जस्ट टाइप MS एक्सेस कंप्लीट टर्म एंड प्रेस द एंटर की। एज यू कैन सी, जैसे मैंने ट्रिक करा MS एक्सेस पे तो ये तुरंत ओपन हो गया। फाइन, सो इस स्टेप को याद रखना, यू हैव टू ऑप्शंस टू डू। यू कैन डू टू थिंग्स, ईदर यू हैव टू टाइप एक्सेस और यू हैव टू टाइप MS एक्सेस। फाइन, कुछ मशीन्स में, कुछ कंप्यूटर में सिंपली एक्सेस लिखने पे आ जाता है और कुछ कंप्यूटर में पूरा MS एक्सेस लिखना पड़ता है। कैपिटल में लिखो या स्मॉल में, इट्स अप टू योर चॉइस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहां पर ये एक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस का ऑप्शन है। फाइन, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ब्लैंक डेटाबेस, और अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा वर्जन है MS एक्सेस का तो तुम्हारी डिस्प्ले पे एक ऑप्शन आएगा ब्लैंक डेटाबेस का, तुमको उस ब्लैंक डेटाबेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं अभी क्लिक करने वाला हूं। और जैसे ही तुम क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, तो देखो कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास एक फाइल ओपन होकर आ जाएगी। हो सकता है वो तुमसे नेम एंटर करने को भी कहे। फाइन, इन सम केसेस इट विल आस्क अ फाइल नेम। फाइन, मेरे केस में नहीं पूछा है, बट कभी कभी क्या करता है, एक फाइल नेम एंटर करने को बोलता है और उसके बाद ही तुम्हारा इस तरीके का ब्लैंक डेटाबेस ओपन होता है। अब जरा फटाफट से पहले इसके फीचर्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे सामने अवेलेबल है। सुनो, as you all are able to see here in this MS Access window, at the top of this, over this side we have menu bar. फाइन, यहाँ पर हम लोगों के पास होती है मेन्यू बार। इस मेन्यू बार में ये जो जस्ट नीचे मेन्यू बार के नीचे बार है, इसको हम लोग कहते हैं रिबन। सबसे टॉप पर होती है टाइटल बार,
Then over this side we have navigation pane. Then over this side we have record navigation bar, and this is our work area. फाइन, आई थिंक ये तीन चीज़ें सबको समझ में आई होंगी. अब चलो इसको लोकेट करते हैं अपने MS Access एप्लीकेशन में. तो देखो भाई, इस MS Access एप्लीकेशन में जो ये वाला पार्ट है सबसे टॉप पे जहाँ पे फाइल का नाम लिखा हुआ है, ये है हम लोगों का टाइटल बार. देन आफ्टर दिस सेक्शन इज योर मेन्यू बार. इस मेन्यू बार में बहुत सारे मेन्यूज है, लाइक फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा एंड सम अदर्स. Then this thing is termed as menu ribbon. Fine, got this much? Then over this side, this section is termed as navigation bar. Then over this side we have record navigation. Fine. So these are some basic tools of MS Access. Now let's see how do we have to work with this thing. Well, MS Access में फर्स्ट बार था हम लोगों का टाइटल बार. अब बात करते हैं टाइटल बार के बारे में. तो टाइटल बार represents the title of our document in general. Fine. The title bar present at the top of the Access window displays the name and path of the current database. It also contains control buttons, that is minimize, maximize and close button. Then next is ribbon. The ribbon provides commands used for performing various tasks in Access. Ribbon is divided into two tabs, or into various tabs you can say, which consist of sets of options related to particular type of task. Each tab is divided into one or more groups of options related to a particular activity. The tabs that appear in the Access 2010 ribbon are Home, Create, External, Data and Database tools. Some tabs appear on the ribbon according to the objects we are working on currently. Fine. Then our next tab is File tab. Well, this File tab is the first menu of a menu bar also, and it's a separate tab also. This File tab is below the Access buttons. And when you will click on this, it will open a menu which provide you some options, like where you can open your files, you can save them, you can print your databases, and you can do some other options, or you can perform some other things with your database file. It also provides options to change various settings in your Access. And then next we have navigation pane. This navigation pane is generally located in the left side of your window. Well, it is located in the left part of the Access window. It displays the list of various database objects. Well, it will generally show you a list of tables that you are creating inside your one database. वहाँ पे तुम लोगों को सारी की सारी tables दिखाई देंगी. Next is work area. This work area is the main workspace of our MS Access window. It is the area where all your database objects like table, form, queries and reports are displayed. It has a tabbed layout which helps in opening and viewing multiple objects in the same work area. Next is record navigation bar. Record navigation bar present at the bottom of the workspace. It displays the controls to navigate through records and apply filters on data and search for particular data. So this was all about our MS Access window. Now let's talk about the tables. Well, in general, whenever you will work with this MS Access, you have to create some tables. And when we talk about a table, we have to work with so many things. Now let's see this practically, and then we will read this Excel sheet. Now let's see what you have to do. Well, the moment when you will open the MS Excel, by default you will get this table 1. Fine. This table 1 is the default table in MS Access. Fine. और ये जो टेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट ये एक एम्प्टी टेबल्स होती है. अब क्या कर रहे हैं भाई, याद रखो, हमेशा MS Access में किसी भी टेबल पे वर्क करने से पहले हम लोगों को एक काम करना होता है. यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है. एक होता है हम लोगों का डिज़ाइन व्यू, एंड सेकेंड इज टर्म्ड एज डेटा शीट व्यू. फाइन. अब ये जो डेटा शीट व्यू होता है, इट इज़ अ एक्सेल लाइक व्यू. ये जो व्यू होता है दिखने में MS Excel जैसा होता है, और तुम उसमें जो भी कुछ टाइप करते हो वो डायरेक्टली हम लोगों के टेबल में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है. एंड सेकेंड इज टर्म्ड एज डिज़ाइन व्यू. डिज़ाइन व्यू एक स्पेशल फीचर है MS Access का, जहाँ पे जाकर के हम लोग अपने कॉलम्स की प्रॉपर्टी को असाइन करते हैं. यहाँ पे तुम असाइन करोगे कि कॉलम का नाम क्या होगा,
कॉलम का टाइप क्या होगा, या फिर कॉलम के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन। लेट्स सी ओवर दिस साइड, ये जो हम लोगों को सेक्शन विजिबल है यहाँ पर, ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों का डेटा शीट व्यू है। अब इसको चेक कैसे करोगे? इसको चेक करने के लिए तुमको इस जगह पर क्लिक करना है बच्चे। जैसे देखो मैंने यहां पे क्लिक करा, यू ऑल कैन इजिली सी दिस थिंग। लेट मी जूम इट आउट। यू ऑल आर आई थिंक वेरी इजिली एबल टू सी दिस कि ये हम लोगों का डेटा शीट व्यू है और इसके जस्ट नीचे डिजाइन व्यू है। और तुम लोगों को डेटा शीट व्यू आई थिंक पहले से सिलेक्टेड दिख रहा होगा। इट मींस अभी हम लोग डेटा शीट व्यू में ही वर्क कर रहे हैं। फिर सेकंड होता है हम लोगों का डिजाइन व्यू। अब ये डिजाइन व्यू क्या होता है भाई? जब भी हम लोगों को अपने एमएस एक्सेल में वर्क करना होता है तो किसी भी सेगमेंट में वर्क करने से पहले हम लोगों को उस टेबल को डिजाइन करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, इस टेबल को डिजाइन करते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो भाई, आई वांट वन टेबल टू स्टोर योर मार्क्स। फाइन। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जरा देखो, जब भी मैं जिस टेबल में तुम लोगों के मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ, मुझे वहां पर तुम्हारा रोल नंबर चाहिए, मुझे तुम्हारा वहां पर नेम चाहिए। फाइन। अलॉन्ग विद दैट आई वांट योर मार्क्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। फाइन। और ये जितने भी मार्क्स होंगे ये सारे के सारे मार्क्स होंगे नंबर्स में। तुम्हारा जो नेम होगा उसमें कोई भी नंबर नहीं होगा। इट मींस जो नेम होगा वो किस में होगा? वो होगा टेक्स्ट में या फिर कैरेक्टर्स में। और ये जो हमारा रोल नंबर होगा बच्चा, वो भी होगा नंबर में। और एक खास बात कि एक क्लास में एक से ज्यादा बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है, मतलब किसी बच्चे का रोल नंबर रिपीट नहीं करेगा। ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे टेबल को बनाएंगे तो हम लोग इसी कुछ बेसिस पे बनाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट दिस थिंग, यू हैव टू क्लिक ऑन द राइट क्लिक ऑफ योर माउस एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट डिजाइन व्यू। लेट मी रिपीट दिस फॉर यू। क्या करोगे? टेबल के नाम पर आओ, राइट क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन डिजाइन व्यू। दैट्स इट। The moment when you will do so, this pop-up will appear in your window and it will ask for your table's name. Suppose मैंने आप लिख दिया class 8A and then I am clicking on this OK button. That's it. जैसे ही मैंने ये करा, I think you all are easily able to see this thing कि जो हमारी विंडो है अब ये कुछ अलग तरीके से अपीयर हो रही है। यहाँ पर तुम लोग देखो, यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है फील्ड नेम। Over this side we have this heading of data types and then over this side we have this heading of description also. Fine. So all these are the heads through which we will design our table now. अब करना क्या होता है भाई, ये जो फील्ड नेम वाली टेबल है यहां पर तुमको अपने कॉलम्स की हेडिंग टाइप करनी है। अब फिर जो डेटा टाइप वाली हेडिंग है यहां पे आकर के तुम अपने कॉलम का टाइप स्पेसिफाई करोगे। और डिस्क्रिप्शन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर तुमको किसी भी कॉलम में कोई भी डिस्क्रिप्शन देना है तो तुम आके डिस्क्रिप्शन वाले टैब में लिखोगे। एंड देन ओवर दिस साइड वी हैव सम जनरल प्रॉपर्टीज। अब ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चा, ये प्रॉपर्टीज जनरली यूज होती हैं डिफाइन करने के लिए कि तुम जो भी कॉलम क्रिएट कर रहे हो उस कॉलम में क्या क्या चीजें तुमको रखनी है। अभी हम लोग जब वर्क करेंगे आई विल शो यू दैट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक यू ऑल मस्ट बी एबल टू सी दिस लिटिल की आइकन। ये जो हम लोगों को छोटा सा एक की जैसा आइकन दिख रहा है, इट इज टर्म्ड एज प्राइमरी की। इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी की। फाइन। और ये प्राइमरी की क्या होती है भाई? जब भी हम लोग कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल में एक ऐसा कॉलम होना चाहिए, जिसकी वैल्यूज कभी भी रिपीट ना करें, यानी कि उसकी वैल्यूज हमेशा रहे यूनिक। फाइन। नाउ जस्ट टू मेक आवर कॉलम यूनिक वी यूज दिस प्राइमरी की थिंग। चलो वर्क करते हैं इसमें हम लोग। एंड कीप वन मोर थिंग बाय डिफॉल्ट in your mind, that default primary key is id. इसको याद रखना, जब भी तुम कोई भी टेबल क्रिएट करोगे बाय डिफॉल्ट वहां पर एक फील्ड अवेलेबल होगा जिसका नाम होगा id, और ये होती है हम लोगों की डिफॉल्ट प्राइमरी की। अब फटाफट से इसमें फिल करते हैं चीजें और देखते हैं भाई। तो ऐसा करता हूं, मैं इस id को यहां से रिमूव कर देता हूं और इसकी जगह मैं यहां पे लिख रहा हूं रोल नंबर। RNO। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो रोल नंबर रहेगा बच्चों का, ये रहेगा नंबर के फॉर्मेट में, तो मैंने आप लिख दिया न्यूमेरिक। नाउ लेट्स सपोज आई वांट टू राइट द स्कॉलर नंबर आल्सो, सो आई हैव रिटन SCHNO। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। फाइन। अब जब
स्कॉलर नंबर टाइप करेंगे भाई, तो स्कॉलर नंबर भी क्या होगा, नंबर के फॉर्मेट में, बट स्कॉलर नंबर के साथ में आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर तुम सबको याद हो तो जो हम लोग का स्कॉलर नंबर होता है भाई वो 5 डिजिट्स का होता है ना, ठीक है। और लेकिन हम में से 90% लोग क्या करते हैं, ऐसा 5 डिजिट का स्कॉलर नंबर टाइप करने में हमेशा गलती करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले हम लोग इस वाले फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, देन अपने इस नीचे फील्ड प्रॉपर्टी ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है फॉर्मेट वाला, इसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करेंगे। तो चलो फटाफट से मॉडिफाई करते हैं प्रॉपर्टीज को और देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको करा जूम इन, हम लोग यहाँ नीचे आ गए हैं भाई, और ये फॉर्मेट वाले में क्या करेंगे, बिकॉज वी नीड 5 डिजिट नंबर्स, सो आई एम राइटिंग 5 टाइम्स 0, दैट्स इट, बस काम खत्म। जैसे ही तुमने इतना करा तुम्हारी इस वाले कॉलम का फॉर्मेट सेट हो गया। अब सेकंड कॉलम क्रिएट करेंगे, नेम। नाउ बिकॉज इन द नेम वी जस्ट नीड द टेक्स्ट, ठीक है। एक काम करते हैं, ये नेम में एरर है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं। नाउ व्हाट वी विल डू इन द नेम, वी विल राइट लेट्स से लॉन्ग टेक्स्ट, देन सपोज वी हैव टू एंटर मार्क्स ऑफ साइंस, तो भाई इसका टाइप होगा नंबर, देन लेट्स सपोज वी हैव टू टाइप द मार्क्स ऑफ मैथ्स, then let's suppose we have to type the marks of computer, let's suppose we only have 3 subjects for now, fine। and let's suppose यहाँ पर मुझे एक और चीज चेक करनी थी, मुझे चेक करना है कि बच्चा पीटीएम वाले दिन प्रेजेंट था या एब्सेंट, फाइन। तो मैंने लिखा पीटीएम। अब बिकॉज यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं ना कि बच्चा पीटीएम वाले दिन प्रेजेंट था या एब्सेंट, तो इट मीन्स यहाँ पे रिजल्ट होगा वो यस या नो में होगा, कि बिकॉज हो सकता है कि बच्चा पीटीएम वाले दिन प्रेजेंट होगा, हो सकता है बच्चा पीटीएम वाले दिन एब्सेंट होगा। तो जो हम लोग यहाँ पर अपना टाइप सिलेक्ट करेंगे उसको हम लोग कहते हैं यस नो। ये यस नो एक बहुत ही स्पेशल टाइप है एमएस एक्सेस का, जिसमें क्या होता है हम लोग को यस या नो में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, फाइन। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी मैं सिंपली क्लिक करूंगा आके इस वाले एरो पे, और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा इस यस नो वाले टाइप को। जैसे ही मैंने इतना करा मेरी टेबल जो है वो क्रिएट हो गई है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रेस कंट्रोल एस, and after doing this much, after pressing Ctrl S, you have to click on this, and then you have to click data sheet view। मैंने इस पे क्लिक करा, मैंने क्लिक करा डेटा शीट व्यू पे, और मैंने इसको करा यस, दैट्स इट। अब सबसे खास चीज जो तुम लोग नोटिस करोगे, देखो जरा, कुछ देर पहले इस टेबल में ऐसी कोई भी हेडिंग्स नहीं आ रही थी, फाइन। लेकिन अब इस टेबल में सारी की सारी हेडिंग्स आ रही हैं, और जहां जहां पे नंबर्स थे वहां पे 0 लिख करके आ रहा है। स्कॉलर नंबर में ऑटोमेटिकली 5 टाइम्स 0 है, और पीटीएम के आगे एक चेक बॉक्स बन के आ गया है, बिकॉज अगर बच्चा प्रेजेंट होगा तो मैं टिक करूंगा, बच्चा एब्सेंट होगा तो मैं इसके आगे टिक नहीं करूंगा। चलो यहाँ पे कुछ फील्ड्स को फिल करते हैं। सपोज को रोल नंबर 1 था हम लोग का पहला, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा और मैंने लिखा यहाँ पे 1। इसका सपोज करते हैं स्कॉलर नंबर था 15 या 140, ये था 145। तो देखो जैसे ही मैंने टाइप करा 145 और मैंने नेक्स्ट वाले सेल पे क्लिक करा, तो ये ऑटोमेटिकली 00145 के फॉर्मेट में आ गया। इससे बेनिफिट क्या होगा भाई, इससे स्कूल में हम लोगों को तुम लोगों की एंट्रीज को फिलअप करने में बहुत ईजी होगा। सपोज करो उस बच्चे का नाम था रामू, देन साइंस में इसके मार्क्स आए थे 90, सपोज इसके मैथ्स में मार्क्स आए थे 67, कंप्यूटर में भी इसके ऐसे कुछ मार्क्स आए थे लेट से 89, और ये पीटीएम में प्रेजेंट था। सेकंड जो बच्चा था भाई, इसका रोल नंबर होगा लेट सपोज 2, इसका स्कॉलर नंबर मान लो मैंने कह दिया कुछ ऐसा था। अब जरा एक गौर करने वाली चीज़ है, जरा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना तुम लोग, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी है या मैं करने वाला हूँ, हो सकता है। अब क्या हुआ, जब मैं इस बच्चे का नाम टाइप कर रहा था भाई, तो मैंने गलती से क्या करा, मैंने इसके नाम में लिखा, मान लो इसका नाम था तुषार, तो मैंने लिखा तुषार 2, सॉरी मैंने लिखा तुषार 2, और जैसे ही मैंने आगे क्लिक करा, अब क्या हुआ, जब मैं इसके मार्क्स एंटर कर रहा था तो मैंने गलती से यहाँ पे मार्क्स में लिख दिया, लेट सपोज मैंने 89 की जगह पे 80 मुझे मार्क्स लिखने थे, मैंने 80 में एक 0 की जगह पे मैंने O टाइप कर दिया, फाइन। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी भाई, जैसे ही मैं इसके मार्क्स लिख रहा था मैंने क्या करा, मैंने गलती से 80 में, जरा इसको जूम करके देखते हैं हम लोग, मैंने क्या करा, मैंने 80 में 0 की जगह पर O बना दिया। अब ये जो O है ये क्या है,
ये अल्फ़ाबेट है। फाइन, अगर सोचो मैंने यही गलती MS एक्सेल में करी होती तो MS एक्सेल मुझे कोई भी एरर नहीं दिखाता, वो इस नंबर को स्टोर कर लेता। लेकिन जब मैं इसका सम कैलकुलेट करता है, जब मैं इसमें कोई भी फंक्शन अप्लाई करता, तो भाई वो फंक्शन यहाँ पे वर्क नहीं करता। बट बिकॉज मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ MS एक्सेस के साथ में, तो यहाँ पे बेनिफिट देखो क्या होगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट वाले सेल पे क्लिक करूँगा तो देखो ये क्लिक ही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो एक छोटी सी एरर आ गई है, ये आपको दिख रहा है, इट इज़ अ एरर। ये जो छोटी चीज़ हम लोगों को विजिबल है, ये एक छोटी सी यहाँ पर एरर आ गई है। चलो इसको फटाफट से देखते हैं एरर यहाँ पर क्या है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर डेटा। अब इसके अकॉर्डिंग इस वाले सेल में हम लोगों को नंबर लिखना था, बट जो हम लोगों ने वैल्यू एंटर करी है वो नंबर से मैच नहीं कर रही है, यानी कि जो वैल्यू एंटर करी है वो रॉन्ग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। फाइन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 80, फिर मैं इसके और सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करूँगा फटाफट से, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एंटर करते चले जाएंगे। फाइन, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस थिंग MS एक्सेस, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम कोई भी गलती करते हो तो ये गलती नहीं होने देता है। अब सपोज को जब मैं थर्ड बच्चे का नेम एंटर कर रहा था तो मुझसे गलती होगी, मैंने गलती से रोल नंबर में लिख दिया 2, मैंने आगे बढ़ गया, डेटा को फिल मैंने करा, तो देखो जैसे ही मैंने ये करा यहाँ मेरे पास एक एरर आ गई। एरर देखो यहाँ पर क्या लिखी हुई है, एरर को हम लोग रीड आउट करते हैं फटाफट से। लो, एरर में लिखा हुआ है द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल। एरर इज सेइंग कि जो चेंजेस हैं ये सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू। अब ये कह रहा है मुझसे कि जो तुमने गलती करी है भाई, यहाँ पे तुमने यहाँ पे जो भी चेंजेस करे वो वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज तुम यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज क्रिएट कर रहे हो। ऐसा क्यों है, बिकॉज यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे 2 रोल नंबर्स 2 हैं, और हम लोग जानते हैं कि एक क्लास में एक से ज़्यादा बच्चे का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। तो बेनिफिट यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मैं MS एक्सेस का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस अपने आप बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी हम लोग स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करते हैं, रिकॉर्ड उसके मेंटेन करते हैं, रिजल्ट क्रिएशन करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं MS एक्सेस का। फाइन, चलो फटाफट से स्विच करते हैं अपनी स्लाइड पे और समझते हैं आगे और कंसेप्ट को। Now here we are discussing about this term table structure। अभी टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी जब मैंने टेबल क्रिएट करा था तो तुम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग टेबल्स में ये जो फील्ड्स बना रहे थे, जो हेडिंग्स बना रहे थे, इन हेडिंग्स में हम लोगों ने टाइप सिलेक्ट करे थे। फाइन, कि ये जो हेडिंग है टेक्स्ट टाइप की है, नंबर टाइप की है, या इसका टाइप क्या है, यस और नो है। फाइन, तो ये जो टाइप होते हैं ना, यही हम लोग फिल करते हैं टेबल स्ट्रक्चर में। टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन द काइंड ऑफ टेबल and the fields it has. It identifies the name, size and type of various fields. A data type determines the type of data in the field. There are different types of data types in MS Access. अब ये जो हम लोग टाइप्स यूज कर रहे थे वहाँ पे, वो अलग अलग टाइप्स हैं MS Access में अवेलेबल। वी हैव सो मेनी टाइप्स such as text, number, auto number, currency, written time, memo and yes and no. Now let's read this part. By default, Access assigns the text data type to every new field. जब भी तुम कोई भी नई फील्ड एक्सेस करोगे, क्रिएट करोगे, तो by default MS Access उसका टाइप सेट कर देता है टेक्स्ट। In case the field is the first field in a table, Access designs the auto number. अगर तुम अपने टेबल में कोई भी फर्स्ट फील्ड, कोई भी फर्स्ट कॉलम क्रिएट कर रहे हो, तो तुम्हारे MS Access में जो भी फर्स्ट कॉलम ओपन होगा उसका टाइप हमेशा बाय डिफॉल्ट ऑटो नंबर होता है, जिसको तुम चेंज कर सकते हो। Now let's talk about all these terms in detail. Our first type is text. A text field contains letters, numbers and symbols. The numbers in a text field are considered as text and cannot be used for calculation. It can store 0 to 255 characters. ये 0 से लेकर 255 characters तक का स्टोर कर सकते हैं। Fine, including all the letters, numbers and everything. Then next is number. This number field is only used to store numeric values. यहाँ पर सिर्फ numbers field होते हैं। It does not accept any letter or any other symbol. For example, just 1406, just 19, all these are the numbers. यहाँ पे कोई भी alphabets नहीं है। Next is auto number. This auto number is a special type of numerical field जहाँ पे values अपने आप एक एक करके बढ़ती जाती हैं। Practically discuss करेंगे सब कुछ हम लोग next learn में। Fine. Then next is currency. This currency is a field which is generally used whenever we have to put currencies. We have to fill the values in currencies along with the symbols. Next is data time. Date and time is generally used to fill date or time in your field. इसको एक बार practically try करना, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको next class में discuss करने वाले हैं. The next is memo. Well,
जब भी हम लोग को बहुत सारा डेटा लिखना होता है, लाइक एक पैराग्राफ, एक होल पेज, 2-3 पेज या उससे ज़्यादा, देन फॉर दैट वी कैन यूज दिस मेमो डेटा टाइप। एंड देन एट लास्ट वी हैव दिस फील्ड ऑफ येस एंड नो। और अभी हम लोगों ने देखा था येस और नो वाली फील्ड में क्या होता है, चेक बॉक्स बंद करके आता है। अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो हम लोग टिक करेंगे, रिजल्ट फॉल्स होगा तो हम लोग उसको ब्लैंक लीव कर देंगे। फाइन। So it was all about our today's class. In the next class we have to discuss about this concept of primary key, and then we will also have to do some practical things. तो नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ा सा प्राइमरी की के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड दैट्स इट फॉर एमएस एक्सेस। सो विद दिस वी एंड दिस क्लास। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सबको सब समझ में आएगा होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।